Today we will see simple queries of SQL. So here in this query we will use select statement. As in last lecture also we have seen these statements, but we will see it again, and after that we will solve some problems that I said you in last lecture. You have to practice how to create table, how to insert data into table. That queries we will see again. So first, here we will see simple queries. In that, select statement. Select statement is used to select data from a table. If you want to select particular data from the whole table, then we can use this statement, select statement. Syntax, select which column you want to select, that you can write here. Column name, second column name. Then on which table we are going to fire this query, that table name is here. And where, if you want to apply some condition, means which column, which value we have to show, that condition we can apply here. So this point is common, select from where. Only your column name, table name and condition will be different, but this is common part. Other way how we can write this statement, if you want to show all the attributes of table, then we can write here star. Instead of column names, we can write here star. Select star from table name. So check the previous condition. Here, this condition, this statement or this syntax is for particular column. If you want to show particular column, then you will write that column name here. If you want whole table attributes, then we can write star in between select and from. So select star from table name. Star means all attributes. Select all attributes from table name where condition. So this is the basic select statement we can write. Example, list all customer name from Pune city. If this is the question, we have to list the customer name only, not whole table attributes. We don't want here, they don't want customer ID, address or any other thing. They want to show only customer name who are from Pune city. So in our table, we need to check, just a minute. In a table, we need to check which are that. Here, this is our table. So this is our table. Here, as per the table, which value we have to show? We have to select the customer name who is living in Pune city. So other check other customer name also who are in Pune city. No, nobody is there. Only one customer is there, that is AAA, who is living in Pune city. So our output will be discussed name and under that AAA. This should be our answer. So how we are going to write that answer? Our query is list all customer name from Pune city. So we have to select the customer name, that is select cust name. Here we have to write the column. Which column we have to show as a output, that column name is here, customer name. Okay. Which table is this? Customer table from customer. Then what condition we have to apply? City should be Pune. So where city is equal to Pune. So using this, we will get that output cust name under that AAA. This should be your answer. Understood this query? Yes, ma'am. This is the basic query, basic select case query. Everyone, boys, yes, boys, understood this? Yes, ma'am. Now next.
SQL for two or more table. In previous query, we have selected only one table, customer. So here we are applying this query for single table only. Now we have to apply the same type of query for more than one table, two or more table. So how to write the syntax? First see the syntax. Here check the previous condition, previous syntax also. In the first we have to write the select and column names. This is regarding only one table, that's why we are not referring here from which table we are getting this column, because only one table is there. But if more than one tables are there, see here from table 1, table 2, table 3, more than one tables are there. So for each attribute we have to mention the table name. Means for table name dot column 1, table name dot column 2, table name dot column 1, table 2 dot column 1 and table 3 dot column 1. This way we have to write the column, because sometime it is possible that some column names are same in different table. Column names are same, so compiler should understand which column we have to select, from which table we have to select that column. That's why here we are writing the table name also. So in this form we have created nickname for this table, another name for this table, because table 1, this is the big string. Instead of that we are converting this string into the small string, because everywhere we are using that string, so everywhere we have to write table 1, table 1, table 1 or table 2. So instead of that we are writing the another name which is created here. In the from part we have to create that name, so that name we can use everywhere. So T1 means for table name, so table name 1, and this is the attribute of table 1. Then column 2, this is the attribute of table 1. In this column 1, this attribute is from table 2, and column 1, this attribute is from table 3. So for that we have created this another name for these three tables. Where here we have to write the condition. What condition we have to apply, that should be in your question. So on the basis of that question you will write here condition. So that condition could be table 1 some column is equal to some value, and or table 2 dot some column is equal to some value. We will give any condition, on the basis of that we have to write here condition. So here what you have to remember, more than two tables we have to include in the from part. So if you don't write this, then also it is okay, but you have to write everywhere, you have to write the table name, table 1 dot column name. So instead of writing big string we are creating another name for this table 1 T1 and using that name. So in the select part we have to write the table name dot column name, and where what condition they have given in the question, as per the question we have to write this condition. So suppose question is show all customer names who have placed order in the month of November 2020. So we have to find the customer who has placed the order. अभी customer का table है, this is order. So we should have one more column, order date. This column we have added in the alter table, that's why it is not in the previous main table. Order ord underscore date, right? Which you month you want? November 2020. So at least one value of this column should be from November 2020. You can write any other month also. So from this
we have to select the name of the customer who has placed a order. So this table is there, customer table is there, and order table is there, who has placed the order in November month, November 2020. So if you check here, this is the November month. So which customer is going to display? Second number customer. Who is that second number customer? BBB. So this will be the output of this query. So see the question answer. Select C dot customer name. We have to select the customer name only from two table. We are joining two table, customer and customer order, because one column is in customer table, that is customer name, and one column is in customer order table, that is order date. That's why we are taking two tables, customer and customer order. From that we have to select the customer name only. As per the query, we have to select customer names who have placed the order in the month of November 2020. So where condition we have to apply here? In the where condition, we have to match the customer number column of order table with the customer number column of customer. This is the required condition. Every time if there are more than one table, we have to write the primary key table column and foreign key table column. This is required condition. And and what we have to do, we have to check the order date is from 1 November to 31st November, because they told that in the month of November 2020. So whole month is there, November 2020. In that month, how many customer has placed the order, that name we have to take. So that for that reason we are adding here condition, and O dot order date is greater than equal to, here we are converting the date because this is the string. This single quote means this is in string form. We have to convert it into the date form. So we will check the date. That date should be in DD, MM, YY format, and from 1 to 31st likhna hai. So O dot order date is greater than equal to 1/11/2020, and O dot order date is less than equal to 31st/11/2020. So it will cover whole November month. So we have to select the customer name who has placed the order between November month. So on the basis of that, it will check the dates given in the order table. This is the customer name it is going to select, and now we have to check the dates which is in November month. So only one date is there from the November month, and here they will get the customer number, because we have written the query. What query we have written first? Customer O dot customer number is equal to C dot customer number. Both should be same. So these two and these two should be same. If this number is not available here, for example 2 number is not available here, so it will not get that answer, because this number is not matching. So this number should be here in the first table also and in the reference table also. So they will first match the numbers. How many numbers, customer numbers are matching, that will be find first, and after that they will find the date, November month date. So only one month is there, only one date is there, which is from November month, and this is for customer number 2. So output will be BBB. Getting it? Yes, are you getting? Yes, ma'am. Now one more point is there, SQL for inner join.
Here, instead of writing this part, O dot customer number is equal to C dot customer number, we can apply this inner join option also. We can apply this inner join query also instead of that writing that statement. So what is that? Select column name. Here we have to select the column names from table 1 and table 2. Then write the keyword inner join. On which table we are applying this inner join, that table name is here. Table 3, T3. On, this is also keyword. Select is the keyword, from keyword, inner join is keyword, and on is also keyword. On T2 dot column name is equal to T3 dot column name. On which table we are applying this inner join? This table, table 2 and table 3. That's why we are writing here inner join, then table inner join. On which table we, on which column we are applying that? That column name is here. So instead of where, we are using here on. Then after that, actual condition which is applying on date. In the previous example, here we are applying the date condition, that we will write in the where clause. So where we will write the date part. So same example we will solve using the inner join. Same example is here. Select customer name from customer C, inner join customer order O, because only two tables are there. So directly we can write this customer C, inner join customer order O. On which column we are applying that? This customer number. We are applying inner join on this column, customer number. So it will first find out the customer number who are common from both the table. After that, they will apply this condition where check the order date is from November month or not. If it is from the November month, it will give the answer. Otherwise, it will give nil answer. It's blank. So output will be same BBB. So instead of writing this query, we can write this. This is the query. Same query we can write using inner join also. So here we are joining two table by using inner join. Clear? Yes, everyone. Yes, ma'am. So now we will see the question to solve, how to solve the questions regarding SQL. So they will give question like this only. After that we have to solve it, means from creation of table till the insertion of table, and after that we have to fire these queries. So first they will question like this only. Consider the following entities and their relationship. What entities are there? Book and author. What are the attributes of book? Book number, book name, publication, and price. You have to solve this query. I'm just giving this query. You will tell me the answer. So prepare yourself. Take a notebook, because in last lecture I have given all the queries: how to create table, how to insert row into table, how to alter table columns. So you will tell me the answer. So here they will give the question like this. Table name will be given to you. Attributes will be given. Then author number, author name, and address. These are the attributes of author table. After that, what they have written: book and author are related with many to many relationship. I will tell you what is this. So after that, you will understand. Every time we have to apply the same formula for each and every question. So I will tell you how to write about this many to many relationship. So they have given the condition: book and author are related with many to many relationship. So create a relational database in 3NF and solve any 5 of the following. So ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें से कोई तो 5 सॉल्व करो. मैंने अभी 5 लिए हैं, उन्होंने ज्यादा दिए रहेंगे तो उसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं. तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट रो इन ऑथर टेबल. सो इंसर्ट करने से पहले पहले तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा कंपलसरी. सो क्रिएट स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए. ऑथर और बुक को पहले क्रिएट करना है आपको.
आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट रो। उन्होंने सिर्फ ऑथर बोला है, ऑथर बोला है, फिर भी आपको बुक में भी इंसर्ट करने पड़ते हैं। और जब आप इंसर्ट करेंगे ना इसमें वैल्यूज, इसमें से क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज है वो पहले चेक करेंगे, और उस टाइप की वैल्यूज भी आने चाहिए, ताकि हमारा रिजल्ट भी वो टाइप का आना चाहिए कि जो उन्होंने बोला है क्या चेंज करना है, तो उस टाइप की वैल्यूज भी उसके अंदर आने चाहिए आपके रोज में। सो पहले वो चेक करने का कि क्या क्या आपके इंसर्ट में आना चाहिए डेटा। जैसे कि यहाँ पे बुक नेम डीबीएमएस, उसको अपडेट करने के लिए बोला है आरडीबीएमएस, तो आपका पहले डेटा में आपका डीबीएमएस आना चाहिए। फिर डिस्प्ले बुक पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। सो आपके जो ये पब्लिकेशन है उसमें से एटलीस्ट वन बुक आपका निराली प्रकाशन का आना चाहिए, और रिटर्न बाय मिस्टर रैना। सो ऑथर नेम आपका क्या आना चाहिए, एक मिस्टर रैना आना चाहिए। ये याद रखने का कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनमें से आपको इनपुट करते टाइम, इंसर्ट करते टाइम डेटा ऐसे पास करना है टेबल में। फिर डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन हुज प्राइस इज ग्रेटर देन ₹300। सो ये प्राइस है, एटलीस्ट एक बुक की प्राइस आप ग्रेटर देन 300 डाल के रखो। सो ये क्रिएशन के टाइम ही आपको याद रखना है। सो इतना ही आपको दिया जाएगा, ये जो दिख रहा है ना, इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको एक एक करके सॉल्व करना है। सो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, बुक एंड ऑथर आर रिलेटेड विथ मेनी टू मेनी। जब ये क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना है मैं बोलती हूँ। ये दो ही टेबल उन्होंने दिए हैं, लेकिन अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप उन्होंने बताया है, देन यू हैव टू क्रिएट थर्ड टेबल। जस्ट अ मिनट, थर्ड टेबल नेम शुड बी डिफरेंट। Here, these are the main two tables they have already given, book and author. These attributes are book and attributes of author are given, but they have said many to many. In that case, you have to create one more table. You can join the table, you can give the name of that table by joining this two table name, book underscore author. We have to create this third table also while creation. So in this, what will be the attributes of this table? Primary key of the first table, that is book table, and primary key of second table. So both are the attributes of this third table. So this is the case when they have not given the third table attributes. Sometimes they will give attributes here only in this question. Book and author are related with the many to many relationship, and third table should contain this attribute. ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स डालेंगे। इफ टेबल इज मेनी टू मेनी, इफ टेबल रिलेशनशिप इज मेनी टू मेनी, तो ये पहले आपको निकालना ही पड़ेगा आंसर्स में। थ्योरी का आंसर लिखो या प्रैक्टिकल का आंसर लिखो, मेनी टू मेनी बोला है ना, ये आपको पहले ड्रॉ करना है कंपल्सरीली, याद रखो। तो आप स्टार्ट करो, इसका स्नैपशॉट ले लो, और एक एक क्वेरी हम देखते जाएंगे। स्नैपशॉट ले लो क्वेश्चन का, बाद में आप लिखो, जगह छोड़ो वहां पे पेज पे। क्वेश्चन के बाद में लिए तो भी चलेगा, सिर्फ स्नैपशॉट ले लो अभी। और अनम्यूट रखो खुद को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका हो गया नहीं हो गया, इसलिए अनम्यूट रखो। जिसके बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज नहीं है, एटलीस्ट वो तो अनम्यूट रखो खुद को। हो गया स्नैपशॉट? Yes, ma'am. हाँ, तो आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। सो यू विल राइट दिस स्ट्रक्चर। ये कंपलसरी आना चाहिए, थ्योरी रहने दो, प्रैक्टिकल रहने दो, ये आता ही है, आपको लिखना ही है। सो दिस इज रिगार्डिंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सो ड्रॉ दिस। टाइम लगने दो आपको, लेकिन क्लियर कर दो थिंग्स। कंपलसरी जो बोला है मैंने वो लिखना ही है पार्ट। आप वहां पे पॉइंट्स डालो कि फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए जब आप क्वेरी सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट आना ही चाहिए, आपको रिलेशनशिप दिखाना होता है। ये हो गया क्लियर?
Yes, ma'am. Everyone understood this part? If they have given question many to many, that time you have to create third table. If they have not mentioned in the question, you have to create this third table with the primary keys of both table. This B number and A number is here. Sometimes they will mention we have to add attribute in this third table. So this two should be there. Plus that attribute name is here. कभी कभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप. यहाँ पे आपका क्या है, मेनी टू मेनी आया तो ही आपको थर्ड टेबल बनाना है. राइट डाउन, नोट में लिख के रखो. मेनी टू मेनी है तो ही थर्ड टेबल बनाना है. वन टू मेनी रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या है आपका वन टू मेनी रहेगा, तो आप क्या करते हैं उसमें, ये बी नंबर है, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल is the foreign key in the other table. There will be only two table, but primary key of one table we have to include in the other table. Then that table, that relationship is called as a one to many. Means इसमें एक ही बार रेफरेंस आएगा उसका one time, but other table will contain more than one reference. Reference key value should be repeated. It should repeat, but primary key should not repeat. So that's why it is called as a one to many relationship. बट मेनी टू मेनी में आपको क्या करना है, दोनों भी टेबल को एक थर्ड टेबल में दोनों भी टेबल की प्राइमरी की लेना है. सो इतना याद रखो आप. ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट द टेबल. सो which is first table we have to create? Book table. Now you have the syntax of create table. Tell me how to create the table. लास्ट लेक्चर के है ना आपके पास? लास्ट लेक्चर का डेटा है आपके पास? मैंने बोल के रखा था कि आपको ये करना है, नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट टेबल करना है. मुझे अभी टेबल बुक क्रिएट करना है. बोलो मुझे सिंटैक्स. आप देख के बोलो, एक दो बार आपको देख के ही करना पड़ेगा. एक बार आपको समझ में आया तो आप खुद से लिख सकते हैं. मुझे टेबल बुक क्रिएट करना है. उसके फील्ड्स देखो पहले क्या क्या है. बुक नंबर है, बुक नेम है, पब्लिकेशन है और प्राइस है. 4 attributes we have to create in this table. So tell me the syntax, how to create the table. सबके पास है syntax? अनम्यूट करो खुद को. अगर मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है आपको आंसर देना है तो क्यों बैठे हो म्यूट करके? अनम्यूट करो. सोहेल अनम्यूट करो. सबको बोला है मैंने, लेकिन कुछ सुनने का ये मूड नहीं लग रहा है आपका. यस सोहेल. सोहेल हो ना? यस मैम. है क्या आपके पास लास्ट लेक्चर का सिंटैक्स क्रिएट का? मैम लेके रखा था मैंने फोटोज उसके, बट प्रैक्टिस थोड़े. करने का ना, मैंने बोला था ना, मैंने यस रखा है, मैम. मुझे पता है ऐसे होने वाला है. अभी आपका का टेबल है, इंस्टेड ऑफ कस्टमर आपको बुक का टेबल क्रिएट करना है. बोलो आप, अभी देख के बोलो, सामने है. बुक का नाम डालना है. बुक के एट्रीब्यूट पता है ना आपको क्या क्या डालने हैं? बुक का नंबर. अनम्यूट करो. यस मैम. बुक का नंबर, नेम और क्या डालना है एट्रीब्यूट? बुक पब्लिकेशन का एंड नंबर, प्राइस. पब्लिकेशन एंड प्राइस. 4 एट्रीब्यूट डालने हैं. तो ये यस अगर मैम. आपको पहले क्रिएट करना है तो ये वे याद रखो, इस वे से ही क्रिएट करना है. सिर्फ आपके एट्रीब्यूट अलग आ जाएंगे. बोलो यस. इस फ्रॉम दिस लाइन टू दिस
यहाँ तक बोलना है आपको। कॉस्ट नंबर प्राइमरी की नल। पहले से बोलो ना, मैंने बोला ना यहाँ से यहाँ तक जाना है, पूरा बोलना है आपको। यस मैम। क्रिएट टेबल कस्टमर कॉस्ट कस्टमर क्यों नंबर। बना रहे हैं, अभी हमारा बुक चल रहा है, हमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करो। मैं फिर से क्यों लिखूं सेम टू सेम नीचे। यस मैम। बुक ये बनाना है ना, अभी हमको ये टेबल बनाना है, बुक टेबल। सो क्रिएट इंस्टेड टेबल ऑफ, बुक। हाँ, क्रिएट टेबल बुक। ओके, यस। नेक्स्ट, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट पहले ये डाल के रखो, उसके अंदर कर्ली एट्रीब्यूट्स। ब्रैकेट। हाँ, एक करली ब्रैकेट मैंने एंड भी किया, सेमीकोलन आना चाहिए एंड में, उसके बाद अंदर एट्रीब्यूट्स। बुक बुक नेम प्राइमरी की। और नंबर को किधर डाला तुमने, 4 एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बुक नंबर, तुम्हारे बुक पास है नंबर। ना, मैंने आपको बोला है यस मैम। नोटबुक लेके रखो, तो बुक नेम डायरेक्टली कैसे आ गया तुम्हारा। फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, बुक नंबर। बुक नंबर। बुक नेम कभी भी प्राइमरी की नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कि दुनिया में एक ही बुक है, ऐसे बहुत लिमिटेड बुक्स है कि एक ही नाम है उसका। लेकिन डीबीएमएस के ऐसे कितने बुक्स रहेंगे अलग अलग ऑथर के ना, तो उसको नहीं ऐसे कर सकते, उसको प्राइमरी की नहीं देख सकते। यहाँ पे बुक नंबर उन्होंने दिया है, बी नंबर आगे, बुक नेम। बेटा पूरा यस बोलना मैम। है, पूरा बोलना है। आफ्टर बुक नेम। एट्रीब्यूट नेम, यस मैम। डेटा टाइप, विच टाइप ऑफ वैल्यू दिस एट्रीब्यूट कैन होल्ड। प्राइमरी प्राइमरी की नॉट नल मैम। अरे ये इसको क्यों, इसको नहीं, ये नहीं लिख रहा है क्या तुमको बीच वाला। लिखना है ना मैम। हाँ तो फिर क्यों नहीं बोल रहे वो, ये जैसे एट्रीब्यूट है उसके बाद आपको उसका डेटा टाइप लिखना है, कंपलसरी आना चाहिए। एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद फिर कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट्स है। तो बुक नंबर इतना यस ही मैम। लिखा है मैंने, तो इंटीजर को क्यों नहीं बोल रहे तुम, यस मैम। बोलो। बुक नंबर का डेटा टाइप क्या आएगा। बुक नंबर इंटीजर मैम फिर। ओके, नेक्स्ट, हमको क्या करना है, नेक्स्ट उसको प्राइमरी की देना है। प्राइमरी की नॉट नल मैम। राइट, कंस्ट्रेंट हो गया फर्स्ट कॉलम का। अभी सेकंड कॉलम क्या है बुक में, बुक टेबल में। बुक नेम कैरेक्टर। यस, बुक नेम कैरेक्टर डालना है, मीन स्ट्रिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, varchar जो है वो डेटा टाइप लेंगे। तो varchar, और बुक नेम मैक्सिमम कितने ये रह सकता है बुक का नाम, वो कैरेक्टर आपको डिसाइड करने हैं। दैट इज 30, अगर बहुत बड़ा नाम है जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमको पता है, और बड़े नाम हो सकते हैं, तो यस मैक्सिमम मैम। हमको डिसाइड करना है कि ये कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, वो कैरेक्टर आप यहाँ पे पास कर सकते हो। फिर अगर उसको, फिर मैम। ये आप डिसाइड करेंगे नॉट नल लिखना है कि नहीं, कंस्टेंट आप डिसाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये आप डिसाइड करते हैं देना है नहीं देना है। ओके मैम, मतलब लिख भी सकते हैं मैम, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है ना नॉट नल, कभी कभी ना ये क्वेश्चन में ही रहता है इधर कि पर्टिकुलर कॉलम शुड नॉट बी एम्प्टी। एम्प्टी। हाँ, ये क्वेश्चन में ही आता है कि ऑथर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी और बुक नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। दैट टाइम शुड नॉट बी एम्प्टी मीन्स इट शुड नॉट null. That time we can write this constraint. If they have not given, you can keep as it is. Okay. Now यस next मैम। is, next third column. पब्लिकेशन कैरेक्टर। Yes, publication, ये भी varchar है, ये डिसाइड कर सकते हैं आप क्या वैल्यूज यहाँ पे डालना है। देन प्राइस, यस मैम। प्राइस।
प्राइस को क्या डेटा टाइप देंगे? इंटीजर। इंटीजर, या हमने यहाँ पे क्या दिया था? इंटीजर ही दिया था। इंटीजर या दूसरा फ्लोट है वो दे सकते हैं अगर पॉइंट में है वैल्यू तो। अभी इंटीजर ही रखते हैं। तो ये इससे क्या हो गया? आपका फर्स्ट टेबल बुक टेबल क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया मैम। सेम वे से दूसरा टेबल क्रिएट करना है। यस मैम। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल ऑथर। गर्ल्स में से कोई एक? यस, गर्ल्स। Yes, ma'am. हाँ बोलो, क्रिएट टेबल ऑथर। Author number, creatable author, हम्म, author number, integer, ये नंबर INT। primary key, नॉट नल। नेक्स्ट, author name, डेटा टाइप varchar, वर्कर 2। ऑथर नेम मैक्स कितना जा सकता है वो नाम। अगर आपको नॉट नल लिखना है तो नॉट नल लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा इफ दिस कंडीशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, address, varchar, तीन ही है ना कॉलम? यस, ADDR है, जैसे दिया है वैसे ही रखो। इससे क्या होगा? टेबल ऑथर क्रिएट हो गया। नाउ थर्ड टेबल, बॉयज में से बुक अंडरस्कोर ऑथर टेबल क्रिएट करना है। यस, बॉयज में से अनुज। यस मैम। हाँ, ये बोलो मुझे, अभी ये है देखो, उसका रेफरेंस यहाँ पे है। सिर्फ उन्होंने ये ज्यादा फील्ड दिए थे, हमको ये फील्ड नहीं चाहिए, हमारे पास दो ही फील्ड है। ये जो मैम जैसे क्रिएट यहाँ पे हाँ बोलो, एक मिनट, इसको नीचे लेती हूँ तो तुम्हें रेफरेंस मिलेगा। क्रिएट टेबल। बुक ऑथर मैम कर्ली ब्रेसेस इंट बुक नंबर इंट बी नंबर इंट। प्राइमरी की नॉट नल। नहीं नहीं, प्राइमरी की ऑलरेडी उसका हो गया है। एक टेबल में अगर प्राइमरी की है ना, दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं होता, फॉरेन की ओके जाएगा। ओके। हम्म? तो यहाँ पे कैसे किया है देखो, ये कस्टमर नंबर भी दूसरे टेबल में प्राइमरी की था, तो इसमें क्या लिखा है? सिर्फ नॉट नल इतना ही लिखा है। तो वैसे ही करेंगे आप भी, नॉट नल। और दूसरा भी कॉलम कौन सा है दूसरा? ऑथर का, ए ऑथर नंबर नंबर इंट नॉट नल। अब ये रेफरेंस की है, ये बताना है आपको। दूसरे टेबल से हमने इनका रेफरेंस लिया है, इसलिए दो लाइंस ऐड करने हैं। जितने भी आप डालेंगे ना ये आईडीज दूसरे टेबल के, उतने ये आपको रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे। अभी बुक नंबर के लिए रेफरेंसेस कैसे लिखेंगे वो बोलो। ऊपर का लाइन देख के वहां पे सिर्फ रिप्लेस करना है ये बुक नंबर को। कांस्टेंट कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड है, कंपलसरी आएगा। बाकी के लोग लिखो, क्योंकि अभी मैंने लैब बुक डाला है ना, उसमें सब है, ये सब लिखना है आपको। उसके बाद नाम क्रिएट करना है आपको फॉरेन की का। तो जहां पे आपका जो कॉलम नेम रहेगा ना, उसको यस एफ के अंडरस्कोर क्या आएगा? मैम आपका बुक कॉलम नंबर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। फॉरेन की
फॉरेन की, कौन से कॉलम पे हम फॉरेन की अप्लाई कर रहे हैं, वो कॉलम का नाम। ऑर्डर नंबर, इसका ही चल रहा है, बुक नंबर, बुक नंबर का ही चल रहा है, बुक नंबर। हाँ, वो बुक नंबर कौन से टेबल में से लिया है, बुक नंबर कौन से टेबल में है। मैम बुक नंबर फर्स्ट टेबल, बुक के। हाँ, बुक की, तो उसका रेफरेंस देना है, रेफरेंसेस आफ्टर दैट वो टेबल का नाम, कौन से टेबल में से लिया है ना, वो टेबल यस का मैम, नाम देना है, रेफरेंसेस इन बुक। ब्रैकेट बुक। ये होगी फॉरेन की, हो गई अभी ये टेबल में बुक नंबर, बुक टेबल में प्राइमरी की थी, अभी इस टेबल में उसको हमने क्या किया, फॉरेन की बनाया है, ये लाइन लिख के। ओके अभी मैम। सेम सेम क्या कर रहे हैं हम, ऑथर को वैसे सेम कन्वर्ट कर रहे हैं रेफरेंस की में, ऑथर नंबर को। चेंजेस क्या रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे ए ए नंबर, नंबर, यस मैम, फॉरेन की कौन से कॉलम पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो कॉलम ए नंबर, ए नंबर, कौन से टेबल में से लिया है, ऑथर। ऑथर। तो आपको ऐसे तीन टेबल, ये लास्ट में कॉमा नहीं आएगा क्योंकि इतने ही एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ऐसे आपको तीन टेबल क्रिएट करने हैं फर्स्ट। मीन्स आपका अभी क्रिएशन हो गया, टेबल क्रिएशन हो गया, मीन्स आपका ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम, ये कंप्लीट हो गया है, डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट रोज इनटू बुक टेबल। फर्स्ट हमको क्या करना है, बुक जो टेबल है उसके अंदर रोज इंसर्ट करने हैं, तो वो इंसर्ट कैसे करेंगे, स्टेटमेंट क्या है इंसर्ट का, यस, मैम Insert इंसर्ट, into इंसर्ट इनटू book. इंसर्ट इनटू बुक, यस, आफ्टर दिस insert into book, next values, values, yes आना ही चाहिए कंपलसरी, book number int means 101 or any number, yes 101 comma, string name, so string name should be in single quote। yes ma'am, अभी बुक नेम आपको क्वेश्चन में एक बार देखना है, आपको क्या क्या, एक तो डीबीएमएस आना चाहिए, बाकी के सब्जेक्ट आप डालो, डीबीएमएस वहां पे कंपलसरी आना चाहिए। फर्स्ट आपका कौन सा है सब्जेक्ट, प्रोग्राम, देन नेक्स्ट date, क्या है, डेट है, ma'am date, पब्लिकेशन, publication, sorry, date, कौन सा पब्लिकेशन बोल रहे हो, ma'am I have used date in date data type in publication, नहीं 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 नहीं, इधर नहीं आता डेटा टाइप, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन पार्ट खत्म हो गया। अभी आपको एक्चुअल वैल्यू क्या टेबल में डिस्प्ले करनी है वो बोलो, कि जैसे कि सी प्रोग्रामिंग का कोड है 101, सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग है, उसका पब्लिकेशन क्या है, जैसे कि विजन निराली, विजन पब्लिकेशन, और आफ्टर दैट ma'am price, प्राइस, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, 200, नंबर है इसलिए 200। तो इससे क्या हो गया, एक वैल्यू इंसर्ट की, ऐसे चार पांच वैल्यू इंसर्ट करने के, और आपका जो बाद में क्वेश्चन आने वाला है उसके रिलेटेड भी एक एक वैल्यू डाल के रखने का, जैसे कि एक आपका डीबीएमएस आना ही चाहिए, तो आउटपुट वो दिखा सकते हैं आप। ठीक है, डीबीएमएस को कन्वर्ट करना है आरडीबीएमएस में, और क्या है उसके साथ,
डीबीएमएस टू आरडीबीएमएस पब्लिश्ड बाय विजन, तो उसको देखो, ये देखो, ऐसा विजन पब्लिकेशन भी आना चाहिए उसका, और दूसरा डीबीएमएस रहेगा, उसका दूसरा पब्लिकेशन डालो, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए उसमें। डीबीएमएस और निराली डालो यहाँ पे, निराली नंबर चेंज करो क्योंकि ये नंबर यूनिक है, 3 4 और एक 5। निराली पब्लिकेशन, ये डीबीएमएस, ठीक है, 3, दूसरा डीबीएमएस का 200, ओके। नेक्स्ट और एक है क्वेरी, उन्होंने क्या बोला है, बुक इंफॉर्मेशन हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 300 जिसका है, तो हम ऐसा एक बुक डालेंगे उसकी प्राइस ग्रेटर देन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस मैथ्स, उसकी प्राइस 400 है। और क्या बोला है यहाँ पे, डिस्प्ले बुक पब्लिश्ड बाय निराली पब्लिकेशन एंड रिटन बाय मिस्टर रैना। तो जब वो दो टेबल कंबाइन होने वाले ऑथर का, तो ऑथर के टेबल में ये मिस्टर रैना आना चाहिए, और ये निराली, निराली जो प्रकाशन है उसकी वैल्यू उसमें जानी चाहिए, दोनों में, दोनों टेबल जो कंबाइन किया है टेबल, उसमें ये 103 और मिस्टर रैना का आईडी वो जाना चाहिए। तो इससे ये अभी स्टेटमेंट जो लिखे है उसमें से हमने क्या किया है, बुक टेबल क्रिएट किया है, बुक टेबल के वैल्यूज। सेम वे से हमको ऑथर टेबल के वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। तो ऑथर टेबल में एक मिस्टर रैना सिर्फ उन्होंने स्पेसिफाई किया है, उसको आना चाहिए, बाकी के आप कुछ भी नाम डालो। ऑथर और क्या क्या है उसके फील्ड से, ऑथर नंबर, सपोज हम 11 डाल रहे हैं, देन ऑथर नेम एक मिस्टर रैना डाल के रखते हैं, और क्या है, थर्ड एड्रेस है ना, बोलो ना, बात करो आप लोग। सेम है से 5 वैल्यूज हमको डालने हैं। आपको करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आप म्यूट करके बैठे हो, मैं ही कर रही हूँ। बोलो नाम तो बोलो, ऑथर नेम, क्या हो गया, क्या हो रहा है, अनम्यूट करने नहीं आ रहा है। मैम चेतन भगत। सब्जेक्ट के ऑथर नेम हमको पता ही नहीं है ना। चेतन भगत बीबीएमएस लिख रहा है, देखो अभी। नेक्स्ट ऑथर नेम बालगुरु स्वामी। नेक्स्ट, अभी आप बोल ही नहीं रहे, जाने दो, पिन ही डाल रही हूँ मैं। नेक्स्ट आपको थर्ड टेबल में भी डेटा इंसर्ट करना है, तो थर्ड टेबल का कैसे लिखेंगे क्वेरी, बोलो।
अनम्यूट करो और बोलो थर्ड टेबल। फास्ट बोलो, हो जाएगा जल्दी जल्दी। थर्ड टेबल के फील्ड दो ही है, बुक नंबर एंड ऑथर नंबर। क्या क्या इंसर्ट करेंगे हम? इंसर्ट इनटू बुक नंबर, ऑथर नंबर। बुक अंडरस्कोर, टेबल का नाम पहले लिखो, बुक अंडरस्कोर ऑथर। वैल्यूज क्या क्या डालने, ये वैल्यूज याद रखो, उसमें 101 से 105 तक है और इसमें 11 से 13 तक है। तो हमको एक आंसर कौन सा चाहिए, देखो क्वेश्चन में देखो क्या आंसर चाहिए। बुक पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन एंड रिटन बाय मिस्टर रैना। तो बुक में निराली प्रकाशन कहाँ पे चेक करो, इसमें निराली ये है, मीन्स 103, वो कोड वहां पे जाना चाहिए। और मिस्टर रैना का क्या है, 11 है। तो 103 एंड 11, वो दो वैल्यू एटलीस्ट जानी चाहिए। बाकी क्या आप कुछ भी डालो, 103 एंड 11। हर एक आप जो आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, हर एक की वैल्यूज आप एक बार चेक करो क्या डालना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर। और क्या क्वेरी है, ये उस टेबल के रिलेटेड है सिर्फ। दोनों टेबल के रिलेटेड क्या है, बुक नेम डीबीएमएस होना चाहिए, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आरडीबीएमएस, और पब्लिश्ड बाय विजन प्रकाशन। है क्या कोई ऐसा, विजन प्रकाशन है, डीबीएमएस है, तो एक ही इसमें जा रहा है, इसका भी कुछ चेंज नहीं है। ये क्या अल्टर करना है, तो एक ही ऐसी क्वेरी थी कि दोनों टेबल से रिलेटेड थी, तो मैंने वो यहाँ पे वैल्यूज डाल के लिए। और बाकी क्या आप कुछ भी वैल्यूज डालो फिर, जैसे कि 101, 12, 102, एटलीस्ट एक एक वैल्यू डालो सबकी। 13, 104, और ये रिपीट हो सकता है, 105, 12। उसके ये क्या आने वाले हैं, टेबल कैसा दिखने वाला है, आपका पहला बुक टेबल है ये। बुक नंबर, बी नंबर। अनम्यूट रखो खुद को। बी नेम, पब्लिकेशन बता भी नहीं सकते कि देख के क्या है, पब्लिकेशन के बाद प्राइस। बुक नंबर 101। मैं लेक्चर बंद कर दूंगी, आपको जो करना है करो फिर। रिपीट मैं क्यों कर रही हूँ, अनम्यूट करो खुद को। मुझे नहीं आता इसलिए कर रहे क्या ये। फास्ट फास्ट वैल्यूज बोलो ना। Vision publication. निराली पब्लिकेशन। एक को ही हमने विजन डाला है शायद, सॉरी एक को ही निराली डाला है, बाकी सब विजन है। 200, 300, 200, 400, 200 प्राइस।
200, 300, 400. अगेन अगेन 200 है ना, सेकंड लास्ट 400 है, Yes, ma'am. लास्ट 200. सो ये जब आपका पहला टेबल इंसर्ट वैल्यू हो जाएंगे ऐसे दिखेंगे. सेकंड टेबल, ये क्यों कर रहे हैं, आपको आउटपुट समझ में आना चाहिए कि क्या आपका आउटपुट आने वाला है, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर में आप डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डालेंगे तो वो वैल्यूज दिखेंगे आपको. जैसे ये टेबल है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखा कि उसमें वो वैल्यूज दिखेंगे आपको. तो इसके बुक के हमने क्या डाले हैं, 11, 12, 13. ऑथर के, सॉरी, ऑथर नंबर, तीन ही वैल्यूज डाले हैं. देन ऑथर नेम क्या है इसका, मिस्टर रैना. दूसरे का चेतन भगत और बालगुरु स्वामी. देन यहाँ पे उसका एड्रेस, पुणे, और बेंगलुरु. तीन ही कॉलम है, इसको डिलीट करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो थर्ड टेबल है उसके वैल्यूज, ये जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर करेंगे तो ये टेबल दिखेगा. अभी बुक अंडरस्कोर ऑथर, दो ही कॉलम है, पहला बुक नंबर है और दूसरा ऑथर नंबर. डिलीट कॉलम. 103, देन 101, इसका 11, देन 101, 12, 102, 13, 104, 11 एंड 105, 12. सो ये आपका आउटपुट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक अंडरस्कोर ऑथर किया तो ये आने वाला है. अभी नेक्स्ट क्वेरी क्या है, देखो इतना आपका यहाँ तक हो गया, इंसर्ट तक. इंसर्ट करने के बाद आपको टेबल में वैल्यूज क्या है वो बताने होते हैं. अभी नेक्स्ट क्या है, ऐड पब्लिश ईयर कॉलम टू बुक टेबल, यूज अल्टर टेबल कमांड. अब ये बोलो इसमें क्या करना है, आपको पब्लिश ईयर कॉलम डालना है. कौन से टेबल में, बुक टेबल में. सिंटैक्स बोलो. Alter table, table name अल्टर and modify टेबल, table name. टेबल नेम क्या है, बुक. Yes, ma'am. Ma'am, we have to modify or we have to add? ऐड, Add column name and data type. हो गया. तो ये आपका क्वेरी हो गया. अगर कितने मार्क्स का है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको डिवाइड किया जाता है 5 को. अगर 2 मार्क्स के है तो ये 2 मार्क्स आपके मिल गया. ये कॉलम ऐड हो गया. नेक्स्ट क्या है, अपडेट बुक नेम फ्रॉम डीबीएमएस टू आरडीबीएमएस, पब्लिश्ड बाय विजन पब्लिकेशन. अभी पहले इतना ही ले लो. हमको क्या सर्च करना है, बुक नेम सर्च करना है डीबीएमएस. तो डीबीएमएस बुक नेम सर्च करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वो सिलेक्ट क्वेरी डालेंगे. लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्टली अपडेट करना है. तो अपडेट क्वेरी भी है वहां पे. तो अपडेट क्या करना है, देखो अपडेट बोलो, अनम्यूट करो. Update table name. टेबल नेम क्या आएगा, देखो Ma'am, book. ये हमारा टेबल है. अपडेट बुक. सेट क्या करना है,
Date book name, set column name. सेट कॉलम नेम क्या आएगा? मैम बी नेम. बी नेम. क्या सेट करना है? वो वैल्यू क्या है? B name is equal to value. क्या वैल्यू क्या डालना है? Ma'am, value. One second. स्क्रीन दिख रही है ना? वहां पे वैल्यू दी है ना उन्होंने, क्या डालना है बोला है वहां पे, चेक करो. बाकी के क्या सो गए क्या? ऊपर ही क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू बताइए कि क्या वैल्यू सेट करनी है. अब RDBMS. हाँ, स्ट्रिंग है तो कंपलसरी सिंगल कोट में RDBMS. ये सेट बुक नेम क्या सेट करना है? RDBMS. कहाँ पे सेट करना है? कंडीशन वेयर. Where B name is equal to हम्म. where B name is equal to column name. वैल्यू. ये कॉलम नेम हो गया बी नेम. Yes, ma'am, value. क्या वैल्यू? वो नहीं बोल रहे तुम. Ma'am, DBMS. ओके. अभी इससे क्या होगा? ये अगर आपने सेमीकोलन दिया ना, तो जितने भी डीबीएमएस है सबको आरडीबीएमएस करेगा. लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? वो बुक पब्लिकेशन विजन पब्लिकेशन रहना चाहिए. तो और एक कंडीशन आने वाली है यहाँ पे, एंड. क्या कंडीशन रहेगी? And published by. एंड पब्लिकेशन. हम्म. Publication is equal to vision publication. सही है सब लोग? बाकी के क्वेरी सही है? Yes, ma'am. हाँ. इससे क्या हो रहा है? बुक टेबल अपडेट हो रहा है. ये बुक टेबल है आपका. अपडेट होने के लिए हमने क्या बोला है? सेट बी नेम इज इक्वल टू आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस कहाँ पे सेट करना है? वेयर बी नेम इज इक्वल टू डीबीएमएस. तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहे हैं, बी नेम इज इक्वल टू डीबीएमएस. बट वन मोर कंडीशन इज देयर, दैट इज पब्लिकेशन इज इक्वल टू विजन पब्लिकेशन. तो एंड लिखा है मीन्स दोनों भी कंडीशन ट्रू होने चाहिए. पब्लिकेशन इज इक्वल टू विजन पब्लिकेशन, इसमें चेक करेंगे इसका निराली है और इसका विजन है, तो सिर्फ यहाँ पे आरडीबीएमएस हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा. जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपका टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और सिर्फ ये चेंज दिखेगा. अगर यहाँ पे और रहता ये, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती, आरडीबीएमएस हो जाती. लेकिन जैसे हमारा क्वेरी है वैसे हम लिख रहे हैं कि update book name from DBMS to RDBMS published by Vision Publication. Clear this update? Yes, ma'am. Display books published by Nirali Prakashan and written by Mr. Raina. अभी की आज जो सिलेक्ट क्वेरी देखी है मोर देन वन टेबल की, वो क्वेरी यहाँ पे आने वाली है. तो उसका एक फॉर्मेट मैं आपको देती हूँ, वो देख के बोलो मुझे. अभी हमको क्या करना है? डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन बोला है, नहीं, बुक पब्लिश्ड. डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन एंड रिटन बाय मिस्टर रैना. सो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कॉलम क्या होना चाहिए. बुक्स बोला है तो सब डिटेल आ जाएगा टेबल बुक्स के. तो क्या आने वाला है देखो यहाँ पे, ये ऑल ऑल करना है हमको, ऑल कॉलम्स डिस्प्ले होने चाहिए.
ऊपर जो क्वेरी है वो स्पेसिफिक कॉलम के लिए है, हमको ऑल करना है। तो क्या क्या बोला था मैंने, ऑल कॉलम अगर शो करना है तो Select सिलेक्ट star. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कौन कौन से है, बुक्स Book. और Author. Author. ऑथर। बट यहाँ पे हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, इसलिए हमको वो जो थर्ड टेबल है उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो रेफरेंस है, बुक अंडरस्कोर ऑथर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक author and book underscore author where condition what we have to select, book is published by Nirali Prakashan and written by Mr. Raina. But before writing this query I told you that we have to match these two, means जो प्राइमरी की है एक टेबल में और दूसरे में फॉरेन की है, वो वैल्यूज वो नंबर आपको मैच करने। तो हमारा क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो क्या हो रहा है हमारा, एक टेबल का कॉलम, यहाँ पे देखो इसमें बुक का बुक नंबर किससे कंपेयर करना है, बुक अंडरस्कोर ऑथर के बुक नंबर से। तो वेयर कंडीशन में हम वही लिखेंगे, वेयर, अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं बुक का बी, ऑथर का ए। नहीं लिखना है तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक डॉट बी नंबर इक्वल टू क्या होगा, ऑथर डॉट ऑथर का और उसका कुछ भी अभी ये नहीं है, ऑथर में बुक नंबर है क्या, नहीं है। बुक नंबर और किस में है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, है क्या, बुक ऑथर बुक अंडरस्कोर ऑथर डॉट बी नंबर। बी नंबर। सेम Number. वे से हमको क्या चेक करना है, ऑथर का भी, ऑथर नंबर का ऑथर, ऑथर का ऑथर नंबर प्लस बुक अंडरस्कोर ऑथर का ऑथर नंबर, दोनों है क्या। एंड कंडीशन आएगी यहाँ पे, एंड ऑथर डॉट ए नंबर, इससे कंपेयर करना है जिसमें उसका फॉरेन की Author. रेफरेंस है, ऑथर डॉट ए Dot नंबर। A number. बुक ऑथर डॉट ए नंबर। तो इससे क्या होगा, वो ज्वाइन कंडीशन है, मीन्स दोनों में वैल्यूज है कि नहीं उतना चेक किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, उसको भी एंड करेंगे क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि ये भी चाहिए, कंपलसरी अगर ये भी चाहिए ऐसा रहेगा तो एंड कंडीशन आएगी। अभी क्या चेक करना है, बुक्स पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। सो निराली प्रकाशन किस में आने वाला है, निराली प्रकाशन मीन्स पब्लिकेशन कौन से टेबल में है, बुक्स के। सो बुक Books. बुक डॉट पब्लिकेशन इज इक्वल टू निराली पब्लिकेशन, वो लिखना है इसमें, एंड बुक डॉट पब्लिकेशन, बुक डॉट पब्लिकेशन इज इक्वल टू निराली पब्लिकेशन। एंड दूसरा क्या है, Author. ऑथर कौन है, मिस्टर रैना, एंड रिटन बाय मिस्टर रैना मीन्स ऑथर का नाम किसमें है, ऑथर टेबल में है। तो ऑथर डॉट ए नेम इज इक्वल टू मिस्टर रैना। तो अभी ये इससे क्या होने वाला है, ये जो क्वेरी है यहाँ तक, इससे क्या होने वाला है, यहाँ पे चेक करेंगे इस टेबल में। इस टेबल में हर एक मीन्स हर एक बुक को वैल्यू असाइन की है क्या, यस। तो इतने जो रिकॉर्ड है ये सब डिस्प्ले होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ बुक का नाम, बुक का पब्लिकेशन, बुक का प्राइस, ये सब भी डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स लिखा है। ये आउट, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ऐसे आपने लिखा है स्टार्टिंग में इनिशियली।
लेकिन आपको कंटेंट क्या चाहिए? डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड बाय निराली, बुक्स पब्लिश्ड बाय निराली। तो अभी के हमने जो क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स भी हो गया, ऑथर भी हो गया और बुक ऑथर भी हो गया। मीन्स इसमें कॉलम, आउटपुट में कॉलम कितने आने वाले हैं पता है? ये क्वेरी से आप अपडेट करो। वैसे अभी इसके हिसाब से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक मीन्स बी नंबर, बी नेम, पब्लिकेशन, फिर प्राइस, फिर ए नंबर ऑथर का, ए नेम, एड्रेस, फिर थर्ड टेबल बुक नंबर, ए नंबर। ऑथर नंबर, ये सब डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन हमको आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट में उन्होंने क्या बोला? डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। तो बुक्स में सिर्फ नाम भी हो सकता है और हम वो टेबल भी दिखा सकते हैं बुक का। वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको एटलीस्ट नाम आना चाहिए आउटपुट में, इतना सोच के करना है। तो अगर आप सिर्फ बुक का नाम डिस्प्ले करने वाले हैं तो इस सिलेक्ट में सिर्फ बी नेम आएगा। क्लियर? डिस्प्ले बुक्स बोला है उन्होंने, उनको ऑथर मीन्स टेबल में, आउटपुट में उनको ऑथर का नाम वगैरह डिस्प्ले नहीं करना है। उन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से हम चल रहे। लेकिन आपको पूरा टेबल अगर बताना है बुक का, तो आप बुक नंबर, बुक नेम, पब्लिकेशन एंड प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है। अगर आपने डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया ना, तो ये आउटपुट आने वाला है, आपको सब दिखने वाला है, ऑथर का भी डिटेल दिखने वाला है। लेकिन हमको क्या चाहिए? सिर्फ बुक्स का डिटेल चाहिए। तो ये सब अभी डिलीट हो जाएगा। ये आपका आउटपुट आने वाला है। अभी आउटपुट में क्या हम चेक कर रहे हैं? बुक पब्लिकेशन निराली होना चाहिए, बुक का पब्लिकेशन निराली होना चाहिए और ऑथर का नेम रैना होना चाहिए। तो वो अभी दोनों मैच हो रहे क्या? ये जो आईडीज है वो मैचिंग के लिए उसी उसी के लिए दिए हैं। एक मिनट, ये पहले का जैसा था वैसे रखती हूँ। बुक नंबर आपका क्या है? 103, 103। देन 103 का बुक नेम क्या है? डीबीएमएस देन ऑथर कौन सा है? ऑथर नंबर क्या है 103 का? 11 है। सो 11 और उसका डिटेल, ऑथर नेम मिस्टर रैना, पुणे। और ये बी नंबर और ये रिपीट हो रहा है 10311, क्योंकि हमने वो टेबल नेम वहां पे इंक्लूड किया है। तो ये जो पार्ट है, ऐसा आउटपुट आने वाला है अगर आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया तो। हमको नहीं करना है, ये हमने मैच किया है, इसकी वजह से ये दिख रहा है। ये मैचिंग किस में है हमारा? ये टेबल और आपका ऑथर का और बुक का टेबल, ये कंपैरिजन हो रहा है कि इसमें जो वैल्यू है उसमें है क्या। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका आउटपुट ऐसे दिखने वाला है, सब डिटेल आने वाले हैं अगर दोनों टेबल में है वो वैल्यूज। तो हमको चाहिए सिर्फ इतना पार्ट। कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निराली प्रकाशन है क्या? यस, निराली प्रकाशन है इस रो में, और इसी रो में मिस्टर रैना भी है। सेम दूसरा अगर आपने रो देखा, दूसरा क्या है? 101 एंड 12 आने वाला है ऑथर। सो 101 और आपका ऑथर 12 है। तो 101 का डेटा क्या है बुक का? और ऑथर का डेटा 101 एंड 12। तो जो कंडीशन है वो देखो आगे मैच नहीं होने वाली। हमने एक ही डेटा डाला है, इसलिए बाद में हम चेक नहीं करेंगे। ये सिर्फ दूसरा दिया है कि वो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ तक सही था, वो सब चल रहा है, सब आपका डेटा जितने भी आपके कॉलम्स है ना, रोज है ना, उसके हिसाब से सब डेटा दिखाएगा वो। अभी मैंने दो का ही यहाँ पे बताया है, सब डेटा दिखेगा। उसके बाद हम और एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, वेयर कंडीशन, क्योंकि एंड लगाया है। एंड
बुक पब्लिकेशन निराली, तो यहाँ पे ये बुक पब्लिकेशन निराली है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। प्लस उसके साथ और क्या चेक करना है, ऑथर नेम मिस्टर रैना। इसमें निराली नहीं है इसलिए ये माइनस ही हो जाएगा, अभी ये दिखने वाला नहीं, आगे का चेक करने की भी जरूरत नहीं इसको। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ही ये रिमूव हो गए। दूसरी कंडीशन, अभी निराली प्रकाशन मिल गया है, अभी दूसरी और एक कंडीशन क्या है, ऑथर नेम इज इक्वल टू मिस्टर रैना। तो ये ऑथर नेम चेक किया जाएगा, मिस्टर रैना है क्या, यस, ये कंडीशन आपकी मैच हो रही है। मीन्स आपके आईडीज भी है टेबल में, दोनों भी टेबल में आईडीज जा रहे हैं। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, बुक का प्रकाशन निराली प्रकाशन होना चाहिए, तो वो भी आ गया। और ऑथर आपका मिस्टर रैना आना चाहिए, तो ये भी आ गया। तो आउटपुट में आपका इतना पार्ट आपको अगर शो करना है, बुक के डिटेल शो करने हैं सिर्फ, तो इसको आप रिमूव करो अभी, क्योंकि हमने कोड चेंज किया है। सिलेक्ट स्टार का हमने क्या किया है, इतना ही शो करो। सिर्फ बुक का नाम दिखाना है तो सिर्फ बी नेम रखेंगे आप यहाँ पे, तो सिर्फ ये इतना आ जाएगा डीबीएमएस। तो अभी के हिसाब से आपका आउटपुट, अभी ऊपर के क्वेरी के हिसाब से आउटपुट इतना आ जाएगा, 103 डीबीएमएस निराली प्रकाशन 200। अगर आपको ऑथर भी बताना है, क्योंकि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑथर नेम एक, और ऊपर क्या चेंज आ जाएगा, मुझे अभी ऐसा आउटपुट चाहिए, ऑथर नेम भी दिखाना है। ऊपर कोडिंग में क्या चेंज हो जाएगा, सिलेक्ट इसमें, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, फास्ट, क्या चेंज हो जाएगा, एक कॉलम ऐड करना है सिर्फ। प्राइस के बाद क्या आएगा, ए नेम। ए नेम, इतना ही चेंज करना है। जो आपको दिखाना है वो फील्ड यहाँ पे आनी चाहिए। क्लियर, ये क्वेरी क्लियर हो गई। यस मैम। नेक्स्ट क्या है क्वेरी, लास्ट वाली क्वेरी है, डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 3000। क्या आएगी क्वेरी, अभी फास्ट बोलो, इजी है ये, एक ही टेबल पे है। क्या क्वेरी आएगी इसकी, ये देखो ना, प्राइस देखो, आपको क्या डिस्प्ले करना है, बुक की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है जिसकी प्राइस ग्रेटर देन 300 है। तो ये आना चाहिए आउटपुट आपका। सिर्फ एक ही है बुक ऐसा कि उसकी प्राइस मोर देन 3000 है, 300 है। आउटपुट में आपका ये दिखना चाहिए, 104 बिजनेस मैथ्स विजन पब्लिकेशन 400। क्या लिखेंगे उसके लिए, अनम्यूट करो, ट्राई तो करो। यस फातिमा, पूरे लेक्चर में ना हाफ टाइम आपको उठाने के लिए लगता है, हाँ? एक दो ही स्टूडेंट है वो अपने आप अनम्यूट कर लेते हैं, बाकियों को बुलाना पड़ रहा है। चलो अमान, फातिमा गई है ऑन ऑन करके, कुछ काम करने गई है शायद। अमान बोलो, डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 300। क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है, जो क्वेश्चन लिखा है उसको आपको थोड़ा कोड व्यू में आपको मेंशन करना होता है। तो डिस्प्ले करना है मीन्स कौन सा क्वेरी यूज करेंगे आप, क्या डिस्प्ले करना है, बुक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज किया है, अमान देख रहे हैं ना, क्या करेंगे, ऐसे आपका आंसर आएगा, क्या करेंगे बोलो आप,
एक दो लोग ही बोलेंगे, बाकी के सिर्फ ऑन करके रख के जा रहे। यस सुफियाना। यस मैम। हाँ बोलो। मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है बुक्स विच प्राइस इज ग्रेटर देन 400। मैंने हाईलाइट भी किया है, वो पार्ट आना ही चाहिए। दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस मैम। तो रीड करो ना वो। मैम select book number, book name. पब्लिकेशन एंड प्राइस। ये पार्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन। अभी ये हो गया। ये कौन से टेबल में से है? बुक नेम। फ्रॉम क्लॉज आएगा, फ्रॉम बुक नेम टेबल। From book. बुक टेबल। हाँ। अभी कंडीशन क्या बोली उन्होंने? Where price is greater than 400. वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 400। इतना ही बोलना है। इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर इस सेंटेंस के लिए? तो ऐसे क्वेरीज आपको करने हैं, ऐसे क्वेरीज आपको आते हैं। आपको मैंने लैब बुक भी शेयर किया है, आप देख लो। उसमें आप चेक कर सकते हैं हर एक। इसमें देखो आपको डीडीएल कमांड्स, टेबल कैसे क्रिएट करने का, अल्टर एंड ड्रॉप टेबल डीडीएल कमांड के ही। फिर डीएमएल कमांड, इंसर्ट अपडेट डिलीट। आरडीबी विदाउट कंस्ट्रेंट, कोई भी कंस्ट्रेंट यूज विदाउट किए हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, मीन्स प्राइमरी की नहीं यूज करनी है, नॉट नल यूज नहीं करना है। टेबल क्रिएशन विथ कंस्ट्रेंट, फिर उसमें प्राइमरी की बता सकते हैं, नॉट नल बता सकते हैं। आरडीबी ये उसमें ही आएगा, आरडीबी विथ कंस्ट्रेंट। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्ट कमांड, जैसे हमने अभी देखे हैं सिलेक्ट कमांड्स, वैसे आप इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज बुक। तो इम्प्लीमेंट हो गया, वो आप यूज कर रहे हो उसको। देन एसक्यूएल सेट ऑपरेशन, ये आपको होने वाले हैं। ज्वाइंस हो गए हैं, लेकिन हम दे सकते, जैसे हमने एक इनर ज्वाइन देखा था, वैसे केस के और ऑपरेशन यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये आपका लैब बुक है डीबीएमएस का। तो आपको एक नोटबुक में ही करना पड़ेगा ये, और अपलोड करना पड़ेगा असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट आपको हर एक के इसके दे दूंगी। आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेबल ले लो, सिर्फ ये इम्प्लीमेंट करके अपलोड करने हैं। सो आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट हो जाता है। सो एक एक इसके इम्प्लीमेंट करके, अभी दो तीन टेबल लिए ना, इसलिए मैंने बोला था कि बुक नोटबुक ले लो। तो यही काम आपको करना है, क्रिएशन, फिर इंसर्शन, फिर कोई क्वेरी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखानी है। तो यही आपका लैब बुक है। तो मैंने शेयर किया है, आप लोग देख लो, ठीक है। जितने हैं ठीक है। फिर चेक करो एक बार लैब बुक। कोई भी अभी जो हमने आज टेबल लिए हैं बुक, वो टेबल लेके भी आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। बुक ऑथर, ठीक है। फिर और एक नोटबुक करो। नोटबुक में वो अपलोड ये करना है, बाद में पिक उसका निकाल के अपलोड करने हैं असाइनमेंट में। तो अभी से आपने स्टार्ट किया तो भी चलेगा, मैं जब डालूंगी सिर्फ उसमें आप अपलोड करके रखो। क्लियर? यस मैम। Okay, ma'am.